Namaskar and good evening. Today we are waiting for a very special event. Amongst academic circle, the discussion on a book, and that too when a book is the book, it becomes imperative for us to begin without it. Since our distinguished guest and eminent author has arrived, therefore I would request the dignitaries to come on the dance. Respected Shri Ram Madhav sir, Professor Balram Pani sir, and Professor Shri Prakash sir. I request you to please grace the place. Identity and culture. It is topical because of contemporary public discourse on social narratives on views from different zones of public thinking. Second significance which immediately comes to my mind is, it is written by a statesman who has served extensively as non-political young activist and then a key players on political activism, and then a personage depictive of ideological mooring but firm on rational thinking. The independence of an author displayed in work, which we will discuss shortly, is proof of author's conviction and firmness to views he holds. Third important seminal aspect of this book is, it is published by Westland Publication India Private Limited, and it is truly the book. The expression I am repeating again because of one peculiar anecdote which we as a lawyer know. Justice M.C. Chagla described certain books as the book, and all those attributes are truly befitting of the work which the distinguished authors have accomplished. It would be difficult, nay, little oxymoron for me to dwell much on the subject when we are with three distinguished speakers. And in that connection, I must say that it is a great privilege to hold the learned author amongst us and distinguished panelists who have read the book in between the lines and are here to discuss its nuances. On behalf of Sangyartham Research Foundation, we are beholden to our guests. Sangyartham Research Foundation is a group of academicians, young thinkers from different walks of life, lawyers and other professionals. The principal objective of Sangyartham Research Foundation is to emphasize on Indian nationalistic thoughts and its harmonization with socio-contemporary research. I would now request few of our distinguished members who are present here to facilitate our guests. So I would request Professor Pramod Kumar Dubey, Professor in NCERT, to facilitate and welcome our chief guest and author, Shri Ram Madhav sir. Professor Geeta Singh, Director CPDHE, to grace Professor Balram Pani, Dean of Colleges, University of Delhi. Dr. Vibhas Sharma, who is Senior Fellow at Sangyartham Research Foundation, will present a bunch of flowers to Professor SPC. I would now request Dr. Rakesh Kumar Singh, Honorary Director Sangyartham Research Foundation, to deliver his formal welcome address. संज्ञार्थम रिसर्च फाउंडेशन के लिए बहुत गौरव का पल है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवी वर्ग, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और अलग अलग क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ जिस मौके पर मौजूद हैं, वह विशेष और पल बढ़ जाता है जब हमारे बीच हमारे अनुकरणीय, जिनको हमने अनुकरण किया है अपने जीवन में करने का हम प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय श्री राम माधव जी, जब से मैंने आपको सुना है, जब से जाना है, जब से पढ़ा है, मैं
उस बौद्धिक चिंतन की उस परंपरा में आपको देखता हूं जो आज हमारे बीच पुस्तक के रूप में सामने आया है, जिसमें भारत सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। आपकी पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट आपके बौद्धिक जीवन प्रक्रिया का एक जीवन दस्तावेज है। निसंदेह आपकी उपस्थिति आपके इस मंच पर पुस्तक के साथ जो एक संवाद की प्रक्रिया आज होने वाली है, इससे हम गौरवान्वित हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सर ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और सर इस मंच पर आज उपस्थित हैं। एक बार बहुत बहुत सादर अभिनंदन और स्वागत करते हुए सर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पानी सर, आपका सानिध्य और मार्गदर्शन विश्वविद्यालय में पिछले लंबे वर्षों से मिलता रहा है। आपके स्नेह और मार्गदर्शन में हम युवा पीढ़ी पुष्पित और पल्लवित होते रहे हैं। आपका इस मंच पर इस पुस्तक के माध्यम से जो मार्गदर्शन मिलेगा, निसंदेह वह हमारी अकादमिक चिंतन प्रक्रिया को एक सकारात्मक दिशा देगा। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, आप इस मंच पर आए, हम बहुत बहुत आभारी हैं और आपका हम सादर अभिनंदन करते हुए आपका सादर प्रणाम करते हैं। आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, लंबे समय से आप विश्वविद्यालय की अकादमिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता, आपकी उपस्थिति विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को एक सकारात्मक दिशा देती रही है, उनको मार्गदर्शन करती रही है। आपका लेखन जो राष्ट्रीय चिंतन धारा है, उसमें जो राष्ट्र की प्रमुखता है, उसको आपने प्रमुख स्वर दिया है। निसंदेह आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव का विषय है। हम आपका सादर अभिनंदन करते हैं, आपको सादर प्रणाम करते हैं कि जो बौद्धिक समाज है, यह पुस्तक उन्हें बौद्धिक रूप से समृद्ध करती है, उन्हें सोचने का नया आयाम देती है। इसलिए इस पुस्तक को एक बार आप अवश्य पढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुराग जी को यह मंच की इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत सादर। Thank you, Dr. Singh. Before we move further, when you read a book, then the temptation to say something is very high, especially when you look the theme like constitutional morality in the book. These are the expressions which are not easily documented in constitutional themes. These are the expressions which are the product of centuries-long struggle and centuries-long transmigration of constitutional ideas, which has found its imprint in our constitutional culture. The book spans on 53 themes, beginning with the spirit of democracy to founding notions of Gandhianism. The emphasis is on beauty of Indic thoughts, collated with Ambedkar's 3 warnings, and import of constitutional morality, which, when I read this book, I realized what the Constitution which said in Manoj Narula is in a sense an imprint of deep political thoughts which underneath this sense of constitutional morality. This book is distinctive work of its kind, and I feel as an avid reader that this is a sui generis work of its own kind. It maps the thoughts of Samajik Samrasta, the nobler precepts of Guruji and Pandit Deen Upadhyay, and highlights the political blunders which finds corrections in Kashmir's question. So I would not take much time and would invite the distinguished author for his author's address. He needs no introduction. Notwithstanding the same, I am tempted to do that. Sri Ram Madhav ji is an Indian politician, author and thinker who is currently serving as a member of National Executive of Rashtriya Swayamsevak Sangh.
Formerly, he has been National General Secretary of Bharatiya Janata Party. He has also served as member of Governing Board of India Foundation, a New Delhi-based premier think tank which seeks to articulate Indian nationalistic perspective on issues of national and international importance. Mr. Madhav has written several books in English and Telugu, with the most recent one being the present one, which is under discussion, Because India Comes First, Reflections on Nationalism, Identity and Culture. He has written for several publications, including the Indian Express and Open magazines. He has also been the editor of Bharati Ratna, a monthly magazine in English published by Ratna Bharati, and associate editor of Jagriti, a Telugu weekly. He is widely traveled more than 30 countries and had addressed prestigious forums like Shangri-La Dialogue in Singapore, World Peace Conference in Thailand, Canada, and other places. I would not intersect much in between, and I would straight away invite Sir to give his author's address. Professor Paniji, Professor Shri Prakash Singh ji, Professor Geeta Singh ji और Professor Dubey जी, डॉक्टर स्वदेश जी और इस कार्यक्रम के आयोजक करता डॉक्टर राकेश जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वद्जन, एकेडमिक्स और अन्य बुद्धिजीवी, सबको मेरा प्रणाम। कोविड का समय है और सेकंड वेव का प्रकोप देश में और दुनिया में देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुझे लगता था कि इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन संभव होगा क्या, पर राकेश जी, स्वदेश जी, शायद सबने कोशिश करके आप सबको कष्ट दिया है। और हालांकि संदर्भ अकेशन मेरा एक किताब के ऊपर चर्चा है, वो किताब अब वैसे तो पुराना हो गया है, के मोटी दिसंबर लास्ट ईयर, तो 4-5 महीना हो गया है, पर मैं उस किताब के संदर्भ में बोलूं, उसका अर्थ ये निकलेगा कि मैं मेरा किताब बेचने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। मेरा कतई वो उद्देश्य नहीं है, जो मुझे मिलना था वो मिल गया है। तो आज मैं कुछ विचार आपके सामने शेयर करूंगा, केवल उसका जो शीर्षक है उसके संदर्भ में। कुछ मित्रों ने इनफैक्ट सम जर्नलिस्ट आल्सो आस्क्ड मी कि आप व्हाई डिड यू गिव दैट पर्टिकुलर very different sounding title? You could have simply said nation comes first, India comes first. Why? Because India comes first. तो मैंने उनको जो उत्तर दिया वो ही आपके सामने भी देता हूं। India comes first is a conviction which the nationalist school of thought, people belonging to the nationalist school of thought, always cherish. India comes first, Rashtra Sarvopari. Because India comes first is the courage of conviction. Conviction many people can have about many things. But that conviction, when it is put to test, whether you can stand upon the conviction firmly or not, whether you are ready to act according to your conviction, in line with your thinking, that is the real test of any conviction. So where most people fail is not in having conviction. Everybody probably will say in this country, if you ask anybody if you are a patriot or not, you will not come across anybody who will say I'm not a patriot. मैं देशभक्त नहीं हूं, ऐसा कहने वाला कोई मिलेगा नहीं। सब कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो देश महान है।
और मैं ये भी कह दूं, हर एक के पास कुछ ना कुछ प्रूफ रहेगा उनका देशभक्ति का बताने के लिए। बोलेंगे कि यार कोविड आया तो हमने तो हमारे घर में 100 लोगों को रोज खाना बना के दिया है, तुम मेरे देशभक्ति पर शंका कर रहे हो। और कहीं बाढ़ आ गया तो हमने तो हमारे मोहल्ले में पैसा कलेक्ट करके बाढ़ पीड़ितों को फ्लड रिलीफ के लिए हमने दिया। या हमारे यहाँ फायर एक्सीडेंट हो गया तो हमने लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई। Everybody also has got a proof for his patriotism. But challenge is largely for us, patriotism is a part-time activity. हमें देशभक्त बनना है तो या तो कोविड आना पड़ेगा या बाढ़ आना पड़ेगा या एक फायर एक्सीडेंट हो जाना पड़ेगा, तब देशभक्त होंगे। नॉट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। क्योंकि देशभक्ति कोई विचार मात्र नहीं है, वो आचरण का विषय होता है। क्या आपके आचरण में वो रिफ्लेक्ट करता है क्या? ये जो बिकॉज शब्द है उस आचरण का संकेत है। It's about the courage of conviction, the courage to do those things. So this book is about the courage of those people who are at the helm of affairs in this country. They are not just theorists about the country, nation, nationality, Rashtrabhakti and all. They are not just theorists. वो उसको आचरण का रूप देने वाले लोग हैं। तो इसमें मैंने उस संदर्भ में कई विषयों की चर्चा करने का प्रयास किया। जब अमेरिका का संविधान बन रहा था, इट वॉज ए लॉन्ग ड्रॉन अफेयर। फाइनली 1776 में उन्होंने फिलाडेल्फिया में जो उनका जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया। सबने लगभग 52-53 पीपल ने साइन किया। After the formal signing of the document was over, they all walked out of the hall. बेंजामिन फ्रैंकलिन भी था उनमें। जब फ्रैंकलिन बाहर आ रहा था तो पत्रकारों ने उनसे पूछा, सर आपने क्या किया अंदर? तो फ्रैंकलिन ने एक बड़ा उत्तर दिया। He said, "We made a republic if we can keep it." उनका कहने का अर्थ यह था कि हमने अमेरिकन रिपब्लिक को बनाने का कोशिश किया है, पर रखना हमको है। वो रिपब्लिक रहेगा नहीं रहेगा ये अमेरिकन लोगों को पर निर्भर है। We through the Constitution tried to make what we called as the United States of America, a republic. But it will be a republic if only you keep it. If you fail to keep it, this document is not going to help. जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमने भी एक संविधान बनाया था। ये अलग बात है कि उस संविधान में हमने नेशन की चर्चा नहीं की है। यहाँ एकेडमिक्स है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होंगे, उनके ध्यान में विषय होना चाहिए कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव द वर्ड नेशन इन इट। हमने हमारे प्रियम्बल में, संविधान के प्रियम्बल में भारत को We the people of India ऐसे संकेत दिया है। हम कौन है? हम भारत के लोग। ये भारत क्या चीज होता है? भारत क्या चीज होता है उसका वर्णन हम आर्टिकल 1 में किया है। इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। हमने भारत राष्ट्र, इस राष्ट्र के हम सब लोग, ऐसा हमने नहीं कहा है संविधान में। बट संविधान बनाने से पहले जो शताब्दियों का आंदोलन चला वो किसके लिए चला?
movement of some educated, enlightened people. They had transformed the independence movement into a nationwide popular movement. जब कांग्रेस शुरू हुई थी 1885 में, तो उस समय तो ब्रिटिशर्स को पिटीशन देने का ही काम चलता था। कुछ पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग बैठ के काम करते थे। उसका एक मास रूप दिया गया गांधी जी के प्रवेश के बाद। एक पैन इंडियन मूवमेंट बना। तब तो केरल से लेकर उधर असम तक उस आंदोलन में लोग जुड़े। तो जुड़े तो किस आधार पर जुड़े? इसी आधार पर ना, इसी बेसिक प्रीमाइस पर ना कि हम एक नेशन है। तो संविधान सभा की जब चर्चा चल रही थी, तब कुछ मित्रों ने, कुछ संविधान सभा के सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि भाई आखिर ये आंदोलन तो पूरा हमारे इस राष्ट्र को आजाद करने का था। पर जब राष्ट्र आजाद हुआ, जब हम एक संविधान इस राष्ट्र के लिए बना रहे हैं, तो अमेरिका के संविधान का नकल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिकन संविधान को, जिसका मैंने जिक्र किया 1776 78 से जो लागू हुआ, उसका पहला सेंटेंस यही है, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसा शुरू होता है। तो हमने भी वी द पीपल ऑफ इंडिया कर दिया हमारे संविधान के प्रारंभ में। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्हाई नॉट स्टार्ट बाय सेइंग वी द इंडियन नेशन? ऐसा क्यों शुरू नहीं करते? तब लोगों को लगता है कि हम एक राष्ट्र है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण उत्तर दिया है। यार बात है, विद्वान उस पर चर्चा कर सकते हैं। अंबेडकर जी का उत्तर पर विद्वानों का बहस हो सकता है, बट वो उत्तर का उसका जो उसकी जो सार्थकता है वो समझना चाहिए। अंबेडकर जी ने ये कहा कि लुक, आई नो दैट मेनी पीपल वांटेड इंडिया टू बी डिस्क्राइब्ड एज ए नेशन, बट नेशन इज ए स्पिरिचुअल आइडिया। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज चले गए इंडिया नेशन हो गया, या ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेज से तो इंडिया नेशन नहीं था। इंडिया में हम आजाद जरूर हुए, पर हमारे सामने यह बड़ा काम बचा है कि इस नेशनहुड की कॉन्शियसनेस को इंडिया में जगाना होगा। These were Ambedkar's words. What exactly he said was that in India we lack national consciousness. What we have is only caste consciousness. हमको जाति की कॉन्शियसनेस है, मजहब की कॉन्शियसनेस है, लैंग्वेज की कॉन्शियसनेस है, नेशनल कॉन्शियसनेस जो एक स्पिरिचुअल आइडिया, राष्ट्र के प्रति एक समर्पण होना है, वो लैकिंग है, उसको बनाना है। यही बात गांधी जी का भी था। गांधी जी ने तो एक बहुत बड़ा काम किया था। अपने मृत्यु से 3 दिन पहले 27 जनवरी 1948 को उन्होंने अपने सेक्रेटरी को एक रिजोल्यूशन का ड्राफ्ट डिक्टेट किया। उस ड्राफ्ट में उन्होंने ये कहा कि हालांकि देश बढ़ गया है, बिकॉज India was partitioned. Although partitioned, यह देश अंग्रेजों के शासन से आज मुक्त हुआ है। वो शब्द जो गांधी जी ने यूज किया वो महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने यह नहीं कहा कि भारत को इंडिपेंडेंस मिल गया, भारत को स्वतंत्रता मिल गई है। गांधी जी का शब्द था, भारत अंग्रेजों के शासन से राजनीतिक दृष्टि से मुक्त हुआ है। We have become politically free। फिर आगे गांधी जी ने लिखा, पर इस देश के करोड़ों 5 लाख गांवों में रहने वाले करोड़ों देशवासियों को सामाजिक, नैतिक, आर्थिक आजादी मिलना बाकी है। तो गांधी जी का भी कहना वो था कि इस देश का संपूर्ण स्वातंत्र्य, केवल स्वराज नहीं, संपूर्ण स्वातंत्र्य तब आएगा जब इस
देश के समस्त देशवासियों के अंदर एक सामाजिक उद्धार हो, नैतिक उद्धार हो और आर्थिक उद्धार भी हो, यानी आर्थिक दृष्टि से भी वो अच्छे हो। तो उस संकल्प से देश के संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि उस रूप के एक राष्ट्र को बनाना इस देश में। भारत केवल अंग्रेजों से मुक्त हुआ, अपने आंतरिक समस्याओं से नहीं। इनके लिए तो जो भी ये बड़े बड़े आइडियाज है, डेमोक्रेसी वगैरह, दे वर जस्ट सुपरफिशियल लेयर्स। इसके अंदर का जो राष्ट्र है, अंदर का जो समाज है, इसके अंदर आज अनेक चैलेंजेस है, अनेक प्रॉब्लम्स है। उनसे इस राष्ट्र को बाहर लाकर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। हमने वो जर्नी तब शुरू किया है। 70 ईयर्स आज बीत गए हैं और हमारे लिए 70 ईयर्स हुआ, अमेरिका के लिए 250 साल हुआ है। पर मित्रों, एक बात कहकर मैं मेरे प्रारंभिक विचार समाप्त करता हूं। आज जब हम और अमेरिका इतिहास के एक बड़ा एक अध्याय के मोड़ पर खड़े हैं, तो आज दुनिया में इस राष्ट्रीयत्व, नेशनल कॉन्शियसनेस को नष्ट करने वाले तमाम प्रयास देशों को बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत दिक्कत दे रहे हैं। अमेरिका जैसे देश आज एक राष्ट्रीय एकता को कायम रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, ऐसे एक संकट के एक दौर से गुजर रहे हैं। भयंकर डिविजन से आज वो समाज परेशान है, समस्याग्रस्त है। माइनॉरिटीज, मेजॉरिटीज, डिविजन्स, डेमोग्राफिक चैलेंजेस, वायलेंस, एंटी नेशनल आइडियोलॉजीज, विशेषकर कैंपसेस में। तो एक भविष्य क्या रहेगा अमेरिका जैसे देशों का, एक ऐसे चैलेंज को सामना करने की स्थिति में वो देश आज है। केवल अमेरिका नहीं, दुनिया के तमाम देश इस समय एक आइडेंटिटी के संकट से गुजर रहे हैं। इमिग्रेशन को लेकर समस्याएं हो रही है, नेटिव नेशनलिस्ट सेंटिमेंट फिर से वापस आ रहा है। तो अभी तक जो एक कृत्रिम नेशन स्टेट्स का निर्माण हुआ है पिछले 200 सालों में, वो नेशन स्टेट्स आज बहुत बड़े चैलेंज को फेस करने वाले हैं। ऐसे में भारत का चित्र कुछ भिन्न दिखता है। भारत के सामने आज वास्तव में जो समस्या डॉक्टर अंबेडकर को 1948 में लग रहा था कि इस देश के अंदर एक व्यापक राष्ट्रीय अस्मिता की भावना नहीं है, आज 70 साल बाद ध्यान में आता है कि भारत के अंदर एक प्रखर राष्ट्रीय भावना रोज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। India's national consciousness is awakening today, is waking up, is rising, is standing up today. तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने इस किताब में जो बातें चर्चा की थी वो है क्योंकि इस कॉन्शियसनेस को जगाने का काम जो पिछले 70, 80, 100 सालों से अनेक लोग करते आए हैं, उसमें कुछ संघ परिवार भी शामिल है और भी लोग हैं। मैंने जैसा कहा, गांधी जी से लेकर गांधी जी ने प्रयास किया, संत महात्माओं ने किया, अनेक लोगों ने किया है, पर एक बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट जो संघ परिवार के माध्यम से हुआ, उसी का एक परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों में उसका एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली की सरकार भी ये घोषणा करने के लिए विवश हुआ है कि दिल्ली के सीनियर सिटीजन्स को राम जन्मभूमि देखने भेजिए। इसलिए विवश हुआ है क्योंकि इस राष्ट्र के अंदर एक जागरण हुआ है। आज राम मंदिर के लिए अब जो निधि संकलन का अभियान हुआ था, तो जो कार्यकर्ता निधि संकलन कर रहे थे 5 लाख गांवों तक वो पहुंचे, 12 करोड़ परिवारों के पास गए। राजनीतिक दलों के ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर ईसाई, मुसलमान सब राम जी का मंदिर बनना चाहिए, एक राष्ट्रीय अस्मिता का गौरव के रूप में बनना चाहिए। इस प्रकार आज करोड़ों देशवासी उसके मंदिर निर्माण में शामिल हो गए।
ये उस बात का परिचय देता है कि इस देश के अंदर एक राष्ट्रीय अस्मिता का बड़ा जागरण पिछले कुछ वर्षों में एकदम प्रखर रूप से सामने आया है। इसलिए संभव हुआ, जैसा मैंने कहा, कि केवल राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद एक सिद्धांत के रूप में रखकर हमने नहीं चला है। हमें उस रूप में खड़ा होने का और इस देश को खड़ा करने का जो साहस चाहिए, वो साहस भी हमारे अंदर रही। और ऐसा साहस, हिम्मत रखने वाले लोग सरकार में बैठे, तब राष्ट्र में एक व्यापक जागरण आ गया अपने आप। जब सरकार में बैठने वाला व्यक्ति मेरे लिए केवल मेरा पार्टी का हित, मेरा निजी हित या मेरे विचारधारा का हित इतना ही मात्र नहीं है, मेरे लिए सबसे ऊपर राष्ट्र का हित है, उसके लिए कठोर से कठोर निर्णय लेने के लिए मैं तैयार हूं। जब उस मानसिकता का होता है, तब चलिए राजनीति जो होती है वो होती है, पर राष्ट्रीयत्व का जागरण ऐसे नेतृत्व के अंदर से होता है। आपने बिस्मार्क का नाम सुना होगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का आयरन चांसलर बोलते हो, बड़ा रोल, दृढ़ता से खड़ा होकर जर्मन भाषा के अनेक राज्य जो होते थे, किंग्स होते थे, प्रिंसेस होते थे, सबको इकट्ठा करने के बड़ा प्रयास 150 साल 130 साल पहले उन्होंने किया था। उस प्रकार जो इस राष्ट्र के अंदर हिम्मत के साथ एक बड़ा परिवर्तन लाने का एक प्रयास हुआ, उसी का आज एक परिणाम है कि देश के अंदर व्यापक राष्ट्रीय भावना का एक संचारण हम देखते हैं। यू फील इट, यू सी इट, यू फील इट। तो उसके पीछे जो प्रयास चली है, उसके संदर्भ में कुछ बातें मैंने इस किताब में लिखी है। पर जैसा मैंने प्रारंभ में कहा है, यह कोई राजनीतिक दल या सरकार नेता के माध्यम से स्थायी रहने वाला विषय नहीं है। यह राष्ट्रीयत्व या राष्ट्रीय भावना हमेशा जीवित रहे, यह तभी संभव है जब यह जनता के अपने प्रयासों के माध्यम से चलता हो। जब इस देश की जनता संकल्प से तय करता है कि हम एक राष्ट्र है, तब सरकार, सत्ता, ये सब गौण सेकेंडरी बन जाते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आज जो ये परिवर्तन आया है, इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए जो 70 साल पहले का जो एक कल्पना थी कि हम एक राष्ट्र नहीं है, ऐसा एक सोच थी। मैंने पहले ही कहा, उस पर बहस हो सकता, वो विचार सही था क्या, नहीं लिखा क्या, इस पर बहस हो सकता है। इंडियंस तो बहुत आर्गुमेंटेटिव है, बहुत बहस हम भी कर सकते हैं। बट वहां से शुरू करके आज इस बात को तो कोई नहीं कहेगा ना कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। यहां हम पहुंच गए, पर इतना ही निवेदन है। असल में अब इस कह सकते हैं जब अब राष्ट्रीय भावना सब दूर है, तो अब क्या काम बचा है, हो गया ना, परंपरा हो नहीं, काम अब शुरू होता है। आज जो असल में जो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक उद्धार की कल्पना गांधी जी ने कहा है, रखा है, उसको पूरा करने का बड़ा दायित्व भारत पर है, इसके नेतृत्व पर है। आज भारत में राष्ट्रीय भाव है, पर भारत में आज भी अनेक समस्याएं हैं। हम कभी कभी बहुत अच्छा सरकार की तरीका होता है, अच्छा डेटा ही दिया जाता है। अच्छा डेटा क्या है, हम दुनिया का 5वें बड़ा आर्थिक शक्ति बन गए हैं, 5th largest economy in the world. अच्छा लगता है, but do you know that in terms of per capita we are 158. आम व्यक्ति वार्षिक आय के आधार पर देखेंगे तो दुनिया में 150 देशों के पीछे हम हैं। तो आज इस अर्थ का जो है उसका वितरण कैसे होगा, उसके ऊपर प्रयास करना पड़ेगा, नौकरी का प्रयास करना पड़ेगा, आर्थिक शक्ति बनना पड़ेगा, सामाजिक शक्ति बनना पड़ेगा। एक काम बाकी है, जो लोग लगे हैं वो लगे हैं, पर राष्ट्र इस संकल्पना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक राष्ट्र है। तो मैंने सोचा कि प्रारंभ में इस बुक के शीर्षक के संदर्भ में जो कुछ विचार मेरा है वो आपके सामने रखूं। मैं राकेश जी और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, आपने कहा कि गांधी ने कहा था कि हम आजाद हो जाएंगे अंग्रेजों से,
पर ये जो मेंटल कॉलोनाइजेशन है, वहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? तो आज के परिदृश्य में जब हम हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, एजुकेशन, कल्चर के लिए, एक फॉरेन में क्या हो रहा है ये देखते हैं, तो उस परिदृश्य में आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि हम मेंटल कॉलोनाइजेशन से कैसे बाहर निकलेंगे? दूसरा एक और प्रश्न है सर, अभी राम मंदिर की बात आपने की, फिर अभी ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ की बातें हुई। हिंदू टेम्पल्स पे कंट्रोल कर रहे हैं बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स। रिलीजियस एंडोमेंट्स एंट्री 28 ऑफ कंकरेंट लिस्ट है, तो उस पर यूनियन गवर्नमेंट क्यों नहीं एक अच्छा सा लेजिस्लेशन ला सकती है और हिंदू टेम्पल्स का जो कंट्रोल है, उसके मैनेजमेंट पे कंट्रोल है, वो कम्युनिटी को वापस दिया जा सकता है। जब तक मानसिक गुलामी का प्रश्न है, वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें काफी कुछ परिवर्तन इस देश के अंदर आया है। जैसा मैंने कहा, जब राष्ट्रवाद जगा, जब मैं कह रहा हूँ, तो उसका अर्थ है कि इस देश की जनता इस देश के अपने मूल अस्तित्व के साथ अपने आप को जोड़ रही है। We are now identifying with the ancient cultural identity of our country, of our nation. तो परिवर्तन की प्रक्रिया लंबी है बट जारी है, हम सब लोग भी उसमें उस प्रयास में शामिल हैं। टेम्पल्स वाला विषय काफी गंभीर विषय है। At one level, it looks like a very easy solution to say that the government should leave all temples to the devotees. बट इसके साथ साथ एक ये भी चैलेंज है, जहां जहां डिवोटीज के हाथ में टेम्पल्स है, ऐसे बहुत टेम्पल इंडिया में, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स व्हिच आर रन बाय आइदर प्राइवेट ट्रस्ट्स और इंडिविजुअल्स। वो जो टेम्पल्स है उसमें इतने विवाद होते हैं, और बाहर के देशों में तो हंड्रेड्स ऑफ केसेस फाइल हो जाते हैं। अमेरिका में आफ्टर अबाउट 15 to 1700 टेम्पल्स, आधे टेम्पल्स केसेस में आज कोर्ट्स में है। जरूर हम सब चाहते हैं कि सरकार का नियंत्रण टेम्पल्स से हटे, इधर हम सब चाहते हैं, पर टेम्पल का मैनेजमेंट कैसा हो, इसकी एक अच्छी व्यवस्था बननी चाहिए, ताकि आगे जाकर भक्त लोग ना लड़ते रहे रोज। तो इसलिए we need to come up with a model which would not lead to unnecessary controversies over temple managements. तो उस दिशा में काफी प्रयास हुआ है, कुछ लोगों ने प्रयास किया है, बट समस्या कहां आती है? भारत के अंदर लाखों की संख्या में टेम्पल्स हैं, पर जब टेम्पल्स को फ्री करने की बात हम भी कहते हैं या सरकार भी विरोध करती है, तो किन टेम्पल्स के बारे में करते हैं? जो रेवेन्यू जनरेटिंग टेम्पल्स होते हैं या एसेट वाले टेम्पल होते हैं, उन्हीं को लेकर सारा विवाद है। But I come from South India. In South India, this act actually ये जो एक्ट है, टेम्पल एंडोमेंट एक्ट जो है, साउथ इंडियन स्टेट्स में ज्यादा तकलीफ देते हैं। नॉर्थ इंडिया में इनका इतना प्रभाव नहीं है। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ये कानून इतना तगड़ा नहीं है, but South Indian states like Tamil Nadu, which have the history of the acts going back to British time, 1860s में वहाँ एंडोमेंट एक्ट आ गया, ब्रिटिशर्स ने लागू कर दिया। तो क्योंकि विवाद ऐसा हुआ कि 1860s में जब लागू किया, क्योंकि टेम्पल्स के पास काफी समृद्धि थी, तो समृद्धि को कब्जा करना था, प्रॉस्पेरिटी, लैंड्स थे, एसेट्स थे, गोल्ड था, ये सब कब्जा करना था। तो वो सब नहीं है, ऐसा हजारों टेम्पल है जो गांव में रहते हैं। क्यों ना देश का समाज उन टेम्पल्स को ना ले लेता? पहले हम अपने गांव में, अपने बस्ती में रहने वाला मंदिर का उद्धार के लिए क्यों कोशिश नहीं करते? हाँ, ये बात सही है कि बड़ा जो मंदिर होता है, जिसके ऊपर एक सरकार कब्जा करके बैठा है, वो स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त कर दिया है, और इन मेनी स्टेट्स द प्रॉब्लम इज दे अपॉइंट नॉन हिंदूज एज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ ए हिंदू टेम्पल, क्योंकि संविधान में तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है रिलीजन पर।
तो किसी को भी लगा दो। ये सबका विरोध होना चाहिए, पर दो चीजों का सावधानी चाहिए। नंबर वन, वी हैव टू कम अप विद अ वेरी टाइट मॉडल that would not tomorrow lead to unnecessary controversies over everything. हमने क्या है, तिरुमला तिरुपति देवस्थान का जो ट्रस्ट है वो बियॉन्ड एनी कंट्रोवर्सी है। वो पूरा सरकार के हाथ में भी नहीं है, पूरा लोगों के हाथ में भी नहीं है। एक मॉडल है। एक मॉडल हमारे जगमोहन जी जब गवर्नर थे तो वैष्णो देवी टेम्पल के लिए किया है। वैष्णो देवी टेम्पल का आज भी 6 वहां का गवर्नर होता है, पर उसका जो ट्रस्ट होती है ऑल इंडिया ट्रस्ट है, देश भर के लोग हैं उसमें। तो एक हाइब्रिड मॉडल है। तो इस प्रकार कुछ प्रयोग, कुछ प्रयास हमारा करना चाहिए, पहली भाग है। दूसरा, देश में कई टेम्पल्स डायलापिडेटेड है, खराब स्थिति में है, उनका भी सोच तो हो, उनमें भी नित्य पूजा अर्चना तो हो, वहां के पुजारी को कुछ मिनिमम सैलरी मिले, उसकी चिंता हिंदू समाज करे। ये दोनों चीज साथ साथ में हमको करना चाहिए। थैंक यू। Good evening, sir. My name is Mahfouz Ahmed Siddiqui. This is for the first time and I am listening you in person. I witnessed a debate of yours with Dr. Shashi Tharoor and I became a fan of you that day. I really appreciate that because before that I was also misconcepted that only Dr. Tharoor has knowledge of constitution, this and that. But that day the way you countered and you very rightly said, and I quote, as I remembered, you said that you only think that you can only interpret the constitution and you actually rectified on many points. Like my question is because India comes first as a topic, where as an Indian practical Muslims stands in the mainstream line of this particular word nationalism, because there is a lot of debate going on everywhere about the nationalism. So when I see myself, because I am a student and my boss is also present here, sitting in the next line, Mr. S.K. Gupta and Mr. K.M. Gupta, I have been associated with them since last 10 years almost, but I never faced that particular problem. So when I became a part of the culture, then I understood it, and they never discriminated on any section, not they as a boss, but all my colleagues, many of them are present here. So what message do you want to give to me? Because I want to, go away from all these things, all these talks, like we talk about Mandir Masjid, I am very happy and I even donated myself, something which I will not quote, not even I discussed with my mentors. That I also participated in some small amount for the construction of Lord Ram Temple, because I thought that it is also my responsibility that I denoted. So what message do you want to give to the youth as an Indian practical Muslim? What do you want to say that how we can become a part of this India comes first? Thank you. I don't position this discourse on religious lines at all. मुस्लिम को कैसे नेशनलिस्ट बनना है, हिंदू को कैसे नेशनलिस्ट बनना है, ये डिस्कोर्स मैं मानता भी नहीं हूँ ऑनेस्टली। ये कोई रिलीजियन सेंट्रिक डिस्कोर्स भाई नहीं, होना नहीं चाहिए। इंडिया में एंटी नेशनल्स का लिस्ट निकालोगे तो सबसे ज्यादा हिंदू निकलेंगे, तो इसीलिए इसको रिलीजियन से संबंध नहीं है। बट एक चीज मैं जरूर एक एकेडमिक दृष्टि से आपके सामने रखता हूँ। देखिए, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी इज द चैलेंज। Once we succeed in pulling our society out of the religious orthodoxy, religious fundamentalism, whichever religion it is practicing it, if we succeed in pulling them out of that religious fundamentalism, everything becomes universal outside that. आपको नेशन कॉन्सेप्ट से तभी समस्या होती है ना कि जब आप नेशन को मानते नहीं हो, उम्मा को मानते हो। आप ये कहो कि भाई उम्मा नेशन कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। नेशन इज ए कल्चरल सिविलाइजेशनल एंटिटी, उम्मा इज ए रिलीजियस बिलीफ। वेयर इज द कॉन्ट्रडिक्शन? इस ऑर्थोडॉक्सी से जितना जल्दी समाज बाहर आ जाता है ना, तब अब उम्मा भी सुरक्षित है, हमारा नेशन भी सुरक्षित है। मैं इसका एक हिस्टोरिकल
एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये आज का नहीं है। जहां रेफरेंस आया है नेशन स्टेट्स का, नेशन स्टेट का प्रादुर्भाव ही इसमें से निकला है। एनलाइटनमेंट इरा जिसको कहते हैं 16th, 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरीज का, उसमें बात यही था ना कि आखिर द रोड टू से हैप्पीनेस, whether it should always pass through Rome or not, understand it in a philosophical sense. यानी मुझे हैप्पीनेस मैं पोप को और कैथोलिक रिलीजन को मानता हूं तभी मिलेगा, ये तब तक मान्यता थी क्योंकि रोमन एम्परर्स ने 3rd सेंचुरी में डिक्लेयर कर दिया क्रिश्चियनिटी इज द ओनली सल्वेशन फॉर मैनकाइंड। ग्रीक्स बाहर लाए थे, फिर रोमन्स ने फिर वापस लाया रिलीजन को। Aristotle and Plato, if you read them, sorry I am giving you potential discourse, Aristotle and Plato व्यक्ति के महत्व को समझ लिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति is a rational being, let him think, let him decide. But the Roman emperors, when they became Catholics, when they brought back the idea that no, not humans but only God will decide what is good and what is not good. It's a long discourse, उसमें नहीं जाऊंगा। उसमें से बाहर आया यूरोपियन समाज through the Reformation and Enlightenment. उसमें इतना ही था कि रिलीजन का विरोध नहीं है, बट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को दूर रखो। स्टेट का भी जो भी भविष्य होगा वो थ्रू रोम होगा, थ्रू वेटिकन होगा, इसकी जरूरत नहीं है। लेट नो कहते हैं ना, व्हाट बिलोंग्स टू सीजर बिलोंग्स टू सीजर, व्हाट बिलोंग्स टू क्राइस्ट बिलोंग्स टू क्राइस्ट। ये सेपरेशन करो। तो वेस्टर्न सोसाइटी उससे बाहर आ गया 16th-17th सेंचुरीज में। फॉर्चुनेटली फॉर हिंदूज यहां भी फंडामेंटलिज्म रहा है, स्ट्रीट्स में रहा है। मैं साउथ से आता हूं, हमारे यहाँ फंडामेंटलिज्म का एक विचित्र सा अनुभव होता है। हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल साउथ में कोई टेंपल में हाथी होता है, तो एक केस हुआ तमिलनाडु में। केस क्या था, उस हाथी के मुख पर जो रिलीजियस सिंबल होता है वो वर्टिकल होना है, हॉरिजॉन्टल होना है, इस पर झगड़ा हुआ। वर्टिकली शैवेट, हॉरिजॉन्टली वैष्णवेट। ये हाथी का वैष्णवेट रिलीजियस सिंबल होना है, शैवेट रिलीजियस सिंबल होना है। उस पर झगड़ा हुआ, बात कोर्ट में गई, कई साल लगे जजमेंट देने में। फाइनली कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कोई सिंबल की जरूरत नहीं, तब तक हाथी मर गई। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोडॉक्सी। इस ऑर्थोडॉक्सी को समाज को बाहर आना है। और एक, क्योंकि मुस्लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात हम सभी के संदर्भ में कहता हूं। देखिए, हम व्यापक समाज को स्टीरियोटाइपिंग से बचना चाहिए। मुस्लिम्स फंडामेंटलिस्ट होते हैं, ये तो एक धारणा बनाने का प्रयास होता है, ये हमारे मन में भी बन जाता है घटनाओं को देखकर, उससे बाहर आना चाहिए। ये भावना का सबसे बड़ा मूल जड़ था पार्टीशन। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, एक गलत आधार पर हुआ था, रिलीजन के आधार पर। जिन्होंने जो पार्टीशन किया उन्होंने हिंदुस्तान को तो नुकसान तो किया ही किया था, पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान किया उसने। पर उस समय पार्टीशन के समय में जो संपन्न मुसलमान थे वो सब पाकिस्तान चले गए, जिसके पास सामर्थ्य था, who had the capacity to migrate, had all migrated। इंडिया में रह गए कौन थे? गरीब मुसलमान, जिनका रोजी रोटी केवल अपने मेहनत से बनती है, वो रह गए। वो समाज उस समय ये ऑर्थोडॉक्सी का शिकार था। तो हमारा कई वर्षों तक उस ऑर्थोडॉक्सी को दूसरा ऑर्थोडॉक्सी मिल गया, तो दंगे होते थे, झगड़ा होता था, बहुत कुछ होता था। पर आज का मुस्लिम समाज, आज का जो जनरेशन है, उस ऑर्थोडॉक्सी से बाहर आ गया है। आज गरीब मुस्लिम समाज नहीं है इंडिया का। इंडिया का मुस्लिम समाज भी बाकी हिंदू समाज जैसे मिडिल क्लास है, वहां भी एजुकेशन है। आज कोई कट्टरवादी मुसलमान के नेतृत्व में या मुल्ला मौलवी के इशारे पर चलने वाला समाज आज नहीं है। इसलिए आज नेशनलिज्म जैसे बहस को एकदम रिलीजन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, सबको इंस्पायर करना चाहिए राष्ट्रवादी बनने के लिए। मैंने इस किताब में एक चैप्टर लिखी थी, मैं उसको केवल संदर्भ इसलिए उल्लेख करता हूं क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है, बस आई थिंक उसके बाद हम बंद कर देंगे।
मेरा चैप्टर का टाइटल था when we say Kashmiri lovers, every Kashmiri lovers. मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ मोदी जी की सरकार ने तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया आर्टिकल 370 को समाप्त करने का, क्योंकि आर्टिकल 370 कश्मीर के सभी लोग इंक्लूडिंग मुसलमानों को नुकसान कर रहा था, वो समाप्त हो गया और व्यापक देश में खुशी का माहौल था। सबने कहा कि अच्छा हुआ है, क्यों? कश्मीर हमारा है। वगैरह में नारा होता था कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है जो सारा का सारा है, ये उधर जो है वो भी हमारा है हमारा वैसे। पर जब कश्मीर हमारा है कह रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है? Does it mean the land, the territory that is ours? Is that the meaning? No. हमारा इस नारे का संदेश जो कश्मीर में जाना है वो ये जाना है, जब मैं कश्मीर हमारा है कहता हूं तो हर कश्मीरी हमारा है। कश्मीरी में लगना चाहिए कि बाकी देश मुझे अपना रहा है, they are embracing me, they are owning me up। ये अप्रोच होना चाहिए राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद एक्सक्लूसिविस्ट आइडिया पर चलना नहीं चाहिए, राष्ट्रवाद हमेशा इंक्लूसिविस्ट आइडिया पर चलना चाहिए। हाँ, कह सकते कि अरे वहां टेररिस्ट नहीं है, तो टेररिस्ट अब छत्तीसगढ़ में नहीं है क्या? जो हुआ है परसों वो क्या था? वो हमारे जवानों को 22 जवानों को जिस तरह मारा गया, वो भी तो टेररिज्म है। उसका धर्म हमने पूछा क्या? हमने कहा कि नहीं वो विचारधारा गलत है। उसी प्रकार वहां जो टेरर की विचारधारा है वो गलत है, पर समाज को उससे बाहर लाने का तरीका एक्सक्लूसिविज्म नहीं है, इंक्लूसिविज्म है। ये अप्रोच से आज सब समाज के लोग देखना चाहिए राष्ट्रवाद जैसे प्रश्नों को कम से कम 21वीं शताब्दी में, in the 21st century at least, we should start looking at them from a very narrow religious prism। ये मेरा मन का अपनी बात है, भिन्न विचार हो सकते हैं, मैं उनको भी स्वागत करता हूँ। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कहीं पहुंचना है। Good evening, everyone. Thank you, Anurag, for asking me to propose the vote of thanks. It's a very difficult task to give a vote of thanks to the personalities those who are on the dais, particularly Mr. Ram Madhav, after such insightful talk on a very, very sensitive and very, very powerful topic, that is nationalism. It's quite difficult for me to just give a plain vote of thanks without speaking few words. In fact, when I entered the hall, I am not a social scientist or a academician. When I entered the hall and saw the title of the book, I was also a little confused, as Madhavji told in the beginning. Then when he spoke on the subject, it dawned on me. Being a bureaucrat, I was always thinking I am a nationalist. But the word, because when he explained this, the courage of the mixer, which one must carry in whatever field you are in, probably that is the key word in the whole book, the courage of the mixer to carry this feeling of nationalism. India stands first at every corner of your life. That message should probably go across all over the country. All the young people, those who are, I think one young person asked the question also. So that message, I think, should go very loud and clear. We must carry that courage of the mixer in our mind, in our heart, in our soul, that this nation comes first. So, Ram Madhavji, from the core of my heart and on behalf of the SRF, I extend a very warm and heartfelt thanks to you for coming here and sparing your valuable time to give the glimpses of your thoughts which you have poured into this book.
it will be a source of encouragement to young and youth of this country to carry forward this message and build this nation as the founders of this nation trained 70 years back. Now, Professor Pani, or Professor Balram Pani took the dialogue to a different level from the socio-cultural and our value system of this Indian culture, from sub-nationalism to nationalism. He took it to Vasudhaiva Kutumbakam, without having any doubt in anybody's mind that nationalism is the core, and then even above that there is something which whole universe is our motherland. That is something very, very profound. Thank you, Professor Pani, for those insightful talks. Then Professor Sri Prakash Singh spoke, quoting from the book, very, very nuances of the topic, and gave a probably he has created a lot of interest. I must say it's a kind of compelling interest which has been created, at least in my mind. I don't know about many other people here, to have a very close look and a very close reading of this book. And definitely I'll be the first person to buy the book when I go back and read it. Thank you, Professor, for this insight on this very important topic. My sincere thanks to the members of SRF. My sincere thanks to Sri Birendra Singh, Member of Parliament, Balia UP, for helping the foundation to organize the event here in this Constitution Club today. With this, I again thank all the panelists here, and specifically Ram Madhavji and Professor Pani and Professor Sri Prakashji, and all the dignitaries here, and special thanks to all the audience, those who have come here to encourage the young professionals, the SRF Foundation members, and also to carry this message of nationalism with them after listening to this very, very inspiring speeches here. Thank you very much.